The Merchant of Venice explanations. Act 1, Scene 1. Where does the scene take place? Venice, a street. Who are the characters present? Antonio, Salarino, and Salanio. So remember, there's a lot of confusion with these names because different books have different names. We have Salarino, alternatively we have Salerio. Salanio, alternatively we have Solanio. So whatever is there in your book, in ICSE they have never asked questions related to this इनके स्पीच के साथ कि कौन बोला, because everybody is confused. Salerio and Salanio, they appear together and more or less they say the same thing. So it's very difficult to distinguish between Salarino and Salanio or Salerio and Solanio. Antonio says, indeed, I do not know why I am so sad. अब आप लोग देखेंगे I know not why I am so sad. इस तरह से क्यों लिखा गया है? बिकॉज ये ड्रामा प्रेजेंट किया जाता था और इसलिए एक राइमिंग, एक रिदम है इसमें. आई नो नॉट वाई आई एम सो सैड. तो थ्रू आउट द प्ले इसी तरह का रिदम मिलेगा. बट जो क्वेश्चंस पूछते हैं उसमें इस रिदम का कोई काम नहीं होता है. उसमें सीधा सीधा पूछता है व्हाट डज एंटोनियो से. सो हम लोग आंसर इस रिदमिक पैटर्न में नहीं दे सकते. हम लोग को आंसर देना होगा एंटोनियो डिड नॉट नो द रीजन ऑफ हिज सैडनेस. So what was Antonio's mood in the beginning of the play? Antonio did not know the reason of his sadness. It wearies me. Wearies means troubles, annoys, depresses. So he says it depresses me, it annoys me. And you say it wearies you. And my friends, you agree that my mood is also depressing to you, my friends. So पहला क्या बोला? Antonio does not know why he was so sad. Second, what does he say? He says that it was troublesome and depressing, annoying to him as well as his friends. It is as easy as that. But how I caught it, found it or came by it. Caught it, found it, came by it. तीनों का एक ही मीनिंग है. That is how he came across it. He did not know. Now catch. तुम देखोगे generally what do you catch? You catch some mysterious disease. Find. What do you find? You find some mischance. Come by it. What do you come by? You come by some accident. So just as a person mysteriously comes across a disease or some accident or some misfortune, I do not know how I caught it, found it or came by it. इतना डिटेल में नहीं जाना है. इन तीनों का मतलब सीधा है. How I caught it, found it or came by it का मतलब how he came across it, he did not know. तो क्या तीन चीज बोला, फिर से रिपीट करते हैं. नंबर 1, ही डिड नॉट नो व्हाई ही वाज सो सैड. नंबर 2, सैडनेस वाज अनोइंग टू हिम एज वेल एज टू हिज कंपेनियंस. नंबर 3, हाउ ही केम बाय इट, ही डिड नॉट नो. हाउ ही केम अक्रॉस इट, ही डिड नॉट नो. सो वी हैव दीज 1, 2, 3. रिमेंबर, आप लोगों को पहले से ही पॉइंट्स बनाना स्टार्ट कर देना पड़ेगा. इससे क्या होगा कि जब भी एग्जाम होगा आप लोगों को आंसर करने में बहुत आसानी होगा. What stuff it is made of? What is the matter of my sadness? What is the material? What is the matter of my sadness? I do not know. Whereof मतलब from where it is born, originated. कहाँ से ये originate हुआ हमको नहीं पता. So ना मेरे को उसका material पता है, matter पता है, ना मेरे को origin पता है. So this becomes number 4. तो चलो फिर से repeat करते हैं क्या क्या बोला. So first he says he did not know why he was sad. Second he says sadness was annoying to him and his friends as well. Third, he says how he came across it, he does not know. And fourth, he says that what was the matter and origin of his sadness, he does not know. Remember 4. ये सब numbers बहुत काम आएगा जब हम लोग एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करेंगे. I am to learn, I am yet to learn, मतलब I do not know. And such a want wit, sadness makes of wit, makes of me. Want wit मतलब फूल. सैडनेस मेक्स मी बिहेव लाइक अ फूल. अगर तुम कोई बात पे दुखी हो, तुम्हारे फ्रेंड्स तुमको अम्यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं बट तुम फिर भी मुंह फुला के बैठे हो, तो सब बोलेंगे व्हाट अ फूल यू आर. तो इसी तरह से बोल रहा है आई नो दैट सैडनेस हैज़ रिड्यूस्ड मी टू अ फूल. आई नो आई एम बिहेविंग लाइक अ फूल. अब वॉन्ट विट फूल कैसे होता है? वॉन्ट मतलब लैकिंग, वॉन्ट मतलब लैकिंग, और विट मतलब विजडम. लैकिंग इन विजडम मतलब फूल. अ फूल लैक्स इन विजडम. तो वॉन्ट विट इज अनदर वर्ड फॉर फूल. एंड सच अ वॉन्ट विट सैडनेस मेक्स ऑफ मी. सो इसको कर देते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 5.
ठीक है। Sadness makes of me, that is, sadness has reduced me to a fool, that I have much ado, I have great difficulty to know myself. To know myself मतलब to recognize myself. हम लोग बोलते हैं ना यार, तुम तो अपने आप को भूल चुके हो, तुम बदल चुके हो कि तुम वैसे नहीं थे जैसे तुम पहले थे। वैसे ये भी बोल रहा है that I have much ado to know myself, that is, I have lost my natural self. Everybody has a natural way of behaving, but Antonio is keeping sad all the time. So he says, you know, I have lost my natural way of behaving. So कितना पॉइंट हुआ यहाँ पे? पॉइंट नंबर 6। तो हम लोग उसको कोट करते हैं। So he did not know why he was so sad. Number 2, sadness annoyed him as well as his companions. Number 3, he did not know how he came across the sadness. Number 4, he did not know the matter of his sadness, nor did he know where sadness originated. And next he says, sadness has reduced me to a fool. आप लोग ये सब नोट कर लीजिए, याद करने में आसानी होगा। And next repeat, लास्ट में वो क्या बोला? That I have lost my natural touch, or I have great difficulty in recognizing myself. Okay, तो अब सैलेरियो या सालारिनो, जैसे भी तुम बोल लो, किसी बुक में सालारिनो दिया है, किसी बुक में सैलेरियो दिया है। अब ये उसका दोस्त है एंटोनियो का, तो वो जब देखता है कि एंटोनियो दुखी है तो वो एंटोनियो को कंसोल करने की कोशिश करता है। कैसे कंसोल करने की कोशिश करता है? ये बता के कि तुम्हारा सैडनेस नेचुरल है, इसमें दुखी होने का कोई बात नहीं है। कैसे तुम्हारा सैडनेस नेचुरल है? तुम्हारे जैसा बड़ा बिजनेस किसी का भी होता तो वो बिजनेस को लेके चिंता में पड़ा रहता। और उसके बाद वो बताते चला गया कि एंटोनियो के शिप्स कितने ह्यूज है, कितने बड़े हैं, और उसमें कितना इन्वेस्टमेंट्स लगा हुआ है। तो इस तरह से वो एंटोनियो को कंसोल करने की कोशिश करता है कि तुम अगर दुखी हो देन यू हैव अ वैलिड रीजन ऑफ बीइंग सैड। योर माइंड इज टॉसिंग ऑन द ओशन। सो जिस तरह से ओशन में वेव्स टॉस करते हैं, उसी तरह से तुम्हारे माइंड में क्या टॉस कर रहा है? एजिटेटेड थॉट्स। तुम्हारे माइंड में क्या टॉस कर रहा है? एजिटेटेड थॉट्स। सो यू आर प्री ऑक्यूपाइड विथ एजिटेटेड थॉट्स। एजिटेटेड मीन्स डिस्टर्बिंग। यू आर प्री ऑक्यूपाइड विथ एजिटेटेड थाट्स। तुम्हारे दिमाग में बहुत डिस्टर्बिंग थाट्स चल रहे हैं, जैसे कि ओशन में लहरें होती हैं, डिस्टर्बिंग लहरें, उसी तरह से तुम्हारे दिमाग में एजिटेटेड थाट्स चल रहा है। बिकॉज वाई ओशन? बिकॉज हिज मर्चेंट शिप्स आर वॉयजिंग टू डिफरेंट कंट्रीज। क्योंकि उसके मर्चेंट शिप्स थे जो बहुत, एंटोनियो एक मर्चेंट था जो गुड्स खरीद के अपने शिप में लोड करता था और उसको वो भेजता था डिफरेंट कंट्रीज़, जैसे वेस्ट इंडीज़ हो गया, जैसे मान लो कि इंग्लैंड हो गया। इस तरह से डिफरेंट कंट्रीज़ में वो भेजता था और उन सब कंट्रीज़ में ये माल, इस गुड्स को बेच के उन कंट्रीज़ का जो स्पेशलिटी है उन गुड्स को खरीद के वापस लाता था इटली, वेनिस, और यहाँ पे उन गुड्स को बेचता था। सपोज़ इंडिया में जूट का प्रोडक्शन अच्छा ज़्यादा होता है और बांग्लादेश में सपोज़ सिल्क का प्रोडक्शन अगर ज़्यादा होता है, तो यहाँ से शिप अगर भेजेंगे और या कोई भी ट्रक लोड करके भेजेंगे तो यहाँ से जूट भेजे, वहाँ से सिल्क लाए। तो इस तरह से स्पेशलिटीज़ क्या है, कंट्रीज ट्रेड करते हैं। और एंटोनियो एक रॉयल मर्चेंट था जिसका पैसा लगा रहता था, वो एक जगह से सामान भेजता था, दूसरी जगह से सामान लाता था, तो उसका बहुत इन्वेस्टमेंट लगा रहता था। तो इसी तरह से क्या है कि योर माइंड इज़ टॉसिंग ऑन द ओशन, क्योंकि तुम सोच रहे हो तुम्हारे जहाज़ के बारे में जिसमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है। सो क्या बोलता है? योर माइंड इज़ टॉसिंग ऑन द ओशन, यू आर फुल ऑफ एजिटेटेड थाट्स। देयर मतलब इन ऑन द ओशन, वेयर मतलब ऑन द ओशन, वेयर योर आर्गसीज, आर्गसीज मीन्स मर्चेंट शिप्स विथ पोर्टली सेल, पोर्टली सेल मीन्स मैग्निफिशेंट सेल्स, बिग सेल्स। सेल क्या होता था? पहले जो है शिप्स में मोटर्स नहीं होते थे, तो इसके कारण क्या होता था, बड़े बड़े सेल्स लगते थे, कैनवस सेल्स लगते थे, बड़े बड़े कपड़े लगते थे, जिस पे जो विंड उसको पुश करता था और शिप जो है वो वॉयज करता था। तो ये जितना बड़ा सेल है उतना बड़ा क्या होगा, उतना बड़ा शिप होगा। तो नंबर 1 पोर्टली सेल। तो वो किस तरह से एंटोनियो के शिप्स को प्रेस करता है? नंबर 1 पोर्टली सेल। तो तुम्हारे शिप्स में बड़े बड़े सेल्स लगे हैं, तो इसका मतलब शिप भी बड़ा है। तो यहाँ पर वो एंटोनियो के शिप को डिस्क्राइब करता है कि कैसे एंटोनियो का शिप्स मैग्निफिशेंट है, कैसे एंटोनियो का शिप्स इतना वेल्दी है और उसमें कितना इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है। लाइक सिग्नियर्स एंड रिच बर्गर्स ऑन द फ्लड। तो योर शिप्स आर लाइक सिग्नियर्स। सिग्नियर्स होते हैं मेन ऑफ स्टेटस, वेरी रिस्पेक्टेबल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी।
एंड रिच बर्गर्स, बर्गर्स होते हैं सिटीजन्स, रिच मतलब वेल्दी। तो तुम ऑन द फ्लड, ऑन द ओशन, जो जिस तरह से समाज में लोग होते हैं जिनका बहुत इज्जत होता है, जिस तरह से समाज में लोग होते हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है और उनको बहुत इज्जत मिलता है और सब लोग उनके सामने झुकते हैं, उनको रिस्पेक्ट करते हैं, उसी तरह से तुम्हारे शिप्स भी इतने बड़े हैं कि जिस तरह से सोसाइटी में मैन ऑफ स्टेटस एंड वेल्दी सिटीजन्स होते हैं, तुम्हारे शिप्स मैन ऑफ सिग्नियर्स एंड रिच बर्गर्स ऑफ द ओशन है, उतनी रिस्पेक्ट तुम्हारे शिप्स को ओशन में मिलता है। और एज इट वेयर, तो ये हो गया पॉइंट नंबर 2। और एज इट वेयर, और एज इफ योर शिप्स वर द पेजेंट्स ऑफ द सी। पेजेंट होता है समथिंग विच इज़ वेरी डिलाइटफुल टू वॉच, डिलाइटफुल प्रोसेशन। डिलाइटफुल प्रोसेशन, लोग कई बार जुलूस निकालते हैं, किसी भगवान का जुलूस निकालते हैं जिसमें बहुत सुंदर से डेकोरेट करते हैं रथ को, बैंड बाजा होता है, लाइटिंग होती है, तो बहुत सुंदर लगता है, लोग कलरफुल क्लोथ्स पहन के निकलते हैं। उसी तरह से इमेजिन करो, अंटोनियो जो है वो इतना रिच मर्चेंट है कि उसका एक शिप नहीं निकलता है, उसके बहुत सारे जहाज़ निकलते हैं। सो बहुत सारे जहाज़, जो ग्रुप ऑफ शिप्स है उसको बोलते हैं फ्लीट। उसको क्या बोलते हैं? फ्लीट ऑफ शिप्स। फ्लीट मतलब ग्रुप ऑफ शिप्स। तो अंटोनियो का फ्लीट ट्रैवल करता था, एक के बाद एक शिप, बड़े बड़े जहाज जिनमें बहुत सुंदर से बड़ा बड़ा सेल्स लगा है, डेकोरेटिव फ्लैग्स लगा है, सुंदर से कलर किया हुआ है, पेंट किया हुआ है। तो जब अंटोनियो का शिप्स निकलता है तो वो कोई डिलाइटफुल स्पेक्टिकल जैसा लगता है। स्पेक्टिकल मतलब समथिंग वर्थ वॉचिंग, व्हाट अ स्पेक्टिकल, डिलाइटफुल स्पेक्टिकल। सो अंटोनियो के शिप्स, फ्लीट ऑफ शिप्स कैसे लगते हैं? दे लुक लाइक सम डिलाइटफुल spectacles or like some beautiful procession. So, or as it were the pageants of the sea. So, number 3, your ships are like some delightful spectacle or some delightful procession that is traveling on the ocean. Number 4, they overpeer, look down upon. ये look down upon का मतलब ये हुआ कि अंटोनियो के शिप्स बिग एंड टॉल है और बाकी सब जो मर्चेंट बोट्स है वो स्मॉल है। तो ऐसा लगता है कि अंटोनियो के शिप्स देख रहे हैं, लुक डाउन अपॉन। ओके, तो बाकी सब रिस्पेक्ट से झुक रहे हैं और अंटोनियो का शिप्स उनको देख रहा है। दे लुक डाउन अपॉन पेटी ट्रैफिकर्स। पेटी मतलब इनसिग्निफिकेंट, जिनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ऑफ लिटिल वर्थ। ट्रैफिकर्स मतलब कॉमन सिटीजन्स। सो पेटी ट्रैफिकर्स मतलब इनसिग्निफिकेंट हम्बल सिटीजन्स, एकदम सिंपल कॉमन पीपल के जैसे। कौन है कॉमन पीपल के जैसे? अंटोनियो के शिप से कंपेयर करते हैं तो बाकी स्मॉलर मर्चेंट बोट्स जो हैं, जो बाकी स्मॉलर मर्चेंट बोट्स जो हैं वो इनसिग्निफिकेंट लगते हैं, एंड दे आर लाइक हम्बल सिटीजन्स। ओके, हु बाउ डाउन कर्टेसी टू देम। तो हम्बल सिटीजन्स क्या करते हैं? जब कोई रिस्पेक्टेड आदमी, बहुत वेल्दी आदमी, नोबल मैन जब चलता है तो बाकी लोग जो है उनके सामने झुकते हैं, सर झुका के उनको रिस्पेक्ट देते हैं। तो उसी तरह से, तो ये हो गया पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 हो गया petty traffickers, and Antonio's ships overpeer them. Okay, that courtesy to them, courtesy to them मतलब pay reverence to them. So courtesy मतलब कि झुकना, courteously, bow courteously, हम लोग बड़ों के सामने झुकते हैं, सर झुकाते हैं, and do them reverence, do them reverence, regard them, respect them. So who pay regard? The smaller merchant boats pay regard to Antonio's big ships. तो ये हो गया पॉइंट नंबर 5। दिस इज पॉइंट नंबर 5। अब बताओ वो लोग कैसे झुकते हैं? अंटोनियो का शिप्स जो है वो बिग है तो वो बिग हैवी है और स्टेडी ऑन द ओशन। जितना हैवी बोट होगा, जितना हैवी शिप होगा, वो वेव्स के साथ ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होगा, वो स्टेडीली एकदम ट्रैवल करेगा। बट जो स्मॉलर मर्चेंट बोट्स है वो लोग वेव्स के साथ ऊपर नीचे मूव करेंगे। तो ऐसा लग रहा है कि अंटोनियो के शिप्स जो है वो स्टेडी है, बाकी स्मॉलर मर्चेंट बोट्स जो है वो लोग ऊपर नीचे हो रहे हैं, एज इफ दे आर बाउइंग डाउन इन रिस्पेक्ट। ओके, सो व्हाई आर दे बाउइंग courteously? Why? Because they move up and down with the waves, whereas Antonio's ships are steady on the ocean. तो ऐसा लगता है कि स्मॉलर मर्चेंट बोट्स दे आर बॉइंग डाउन टू रिस्पेक्ट अंटोनियो शिप्स। ये हो गया पॉइंट नंबर 5। एज दे फ्लाई बाई, दे मतलब अंटोनियो शिप्स, फ्लाई बाई मतलब मूव वेरी स्विफ्टली, बाई देम मतलब कॉमन ट्रैफिकर्स, पेटी ट्रैफिकर्स या स्मॉलर मर्चेंट बोट्स, विद देयर वोवन विंग्स। वोवन विंग्स मतलब सेल्स, जो बड़े बड़े सेल्स है अंटोनियो के, दे एक्ट लाइक बिग विंग्स। और विंग्स का मतलब क्या है? दे सेल स्विफ्टली पास्ट। कितने जल्दी अंटोनियो के शिप्स जो है उनका मूवमेंट भी बहुत स्विफ्ट है, एंड दे पास बाई देम स्विफ्टली विद देयर वोवन विंग्स। सो अंटोनियो शिप्स दे मूव वेरी स्विफ्टली बाई द स्मॉलर मर्चेंट बोट्स। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 6।
सो क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है कि हाउ डज सेलेरियो प्रेज अंटोनियो शिप्स. तो नंबर 1, हाउ डज ही प्रेज अंटोनियो शिप. सो लेट अस सी. नंबर 1, पोर्टली सेल्स. Number 2, they are as respectable as men of status and wealth of the flood. Point number 3, they are like some delightful spectacles. Point number 4, they look down upon other merchant boats. Point number 5, the other merchant boats bow in respect. And point number 6, Antonio's ships move swiftly with their woven wings. So अब क्या करोगे तुम लोग एक एक करके, इसमें जितना भी पॉइंट्स है उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना. तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा, व्हाट वाज अंटोनियोज मूड. सो अंटोनियो वाज सैड. ही एक्सेप्ट्स और एक्नॉलेजेस दैट sadness not only annoyed him but also his companions. He says how he came across it, he does not know. Number 4, he did not know the matter or the origin of his sadness. Number 5, sadness made him behave like a fool. Number 6, he had much difficulty to know himself, or he had lost his natural touch. So there are 6 points. If you remember this number 6, you can easily state the answer. 6 points you can easily and clearly state, and this will be very easy for you to note down. How does Salerio praise Antonio's ship? Number 1, they have portly sails. Number 2, they are like rich and wealthy citizens of the flood. Next we have, they are like some delightful spectacles of the ocean. Number 4, they look down upon other merchant boats. Number 5, the other merchant boats bow in respect. And number 6, Antonio's ships move swiftly past other merchant boats as if they have woven wings. So यहाँ पर भी 6 points है. If you remember 6, इस तरह से तुम देखोगे तुमको पूरा ये जो डिटेल है पूरा याद हो जाएगा. एंड एज यू मूव अहेड, खाली कीवर्ड्स लिखने से तुम आंसर कर पाओगे. जैसे यहाँ पर कीवर्ड्स तुम क्या लिखोगे. नंबर 1, पोर्टली सेल्स. नंबर 2, रिच बर्गर्स. नंबर 3, पेजेंट्स ऑफ द ओशन. नंबर 4, overpeer the petty traffickers. Number 5, courtesy. Number 6, woven wings. तो इस तरह से ये शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो पूरा याद हो जाएगा. तो कैसे, ये इस तरह से बनाते चले जाएंगे और धीरे धीरे करके हम लोग इसको लर्न करते चले जाएंगे. बिकॉज यू हैव अराउंड 90 to 100 सच पेजेस. ये हम लोग अभी पेज नंबर 1 में हैं, तो इस तरह से 90 पेजेस है. तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो वैसे वैसे ये और डिटेल्स तुमको याद रखना पड़ेगा. तो तुम अगर एक बार में अच्छे से याद कर सको तो आगे चल के क्या है बहुत हेल्प होगा. अब यहाँ पे क्वेश्चंस कैसा पूछता है आईसीएससी क्वेश्चंस. मेंशन एनी 3 थिंग्स दैट सेलेरियो टेल्स अबाउट अंटोनियो शिप्स. बहुत इजीली आंसर कर सकते हो. अंटोनियो टेल्स दैट Salerio says that Antonio's ships have portly sails. They fly by other merchant boats as if they have woven wings. The other merchant boats bow in respect. The Antonio's ships are like the pageants of the ocean. तो सपोज 3 पॉइंट्स पूछा, हम 4 पॉइंट्स बता दिए. तो आईसीएससी में क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चंस पूछता है, कभी भी इन डेप्थ क्वेश्चन नहीं पूछता है. तो अगर बेसिक टेक्स्ट का नॉलेज हुआ तो कोई भी आईसीएससी क्वेश्चन तुम आंसर कर सकते हो. हम लोग जैसे ही एक्ट 1 सीन 1 खत्म करेंगे, हम लोग बहुत आईसीएससी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है. सो प्लीज़ धीरे धीरे करके डिटेल्स लर्न करो, तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू. सो आई विल सून बी पोस्टिंग द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस.